Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 11 science chapter number 3. It is the second part of this chapter. Today topic is chlorophyce. The member of the chlorophyce are commonly called green algae. The plant body may be unicellular, colonical and the filamentous. They are usually grass green due to the dominancy of pigments chlorophyll A and B. The pigments are localized in definite chloroplast. The chloroplast may be discoid, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral, and the ribbon-shaped in different species. Most of the members have one or more storage bodies called pyrannids located in the chloroplast. Pyrannids contain protein. Besides starch, some algae may store food in the form of oil droplets. Green algae usually have a rich cell wall made up as inner layer of cellulose and an outer layer of pectose. Vegetative reproduction usually takes place by fragmentation or by formation of different types of spores. Asexual reproduction is by flagellated zoospores produced in zoosporangia. The sexual reproduction shows considerable variations in the types of oogamous. Some commonly found green algae are Chlamydomonas, Volvox, Coleothris, Spirogyra and Carum. आगे बताया गया है बेटा क्लोरोफाइसी में क्लोरोफाइसी के जो सदस्य हैं वो प्राय उन्हें हम ग्रीन एल्गी यानी कि हरी शैवाल के नाम से जाना जाता है। ये एक कोशिकीय होती हैं कॉलोनी में एवं तंतु में भी हो सकती हैं, यानी कि ये कॉलोनी बना के भी रहते हैं, ये अलग से भी रह सकते हैं और ये तंतुनुमा भी हो सकते हैं। दे आर यूजली ग्रास। क्लोरोफिल ए तथा बी के प्रभावी होने के कारण इनका जो रंग होता है वो हरी घास के जैसा होता है और वर्णक जो होता है वो सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जिस प्लेट की तरह जालिकाकार, कप के आकार का, सर्पिल एवं रिबन के आकार की हो सकते हैं। इसके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरेनाइट पाए जाते हैं। पायरेनाइट स्टार्च होते हैं। क्या होते हैं? पायरेनाइट स्टार्च होते हैं। कुछ शैवाल ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में यानी कि तेल की बिंदु के रूप में भोजन संचित करते हैं। और ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिग्ड सेल वॉल। जो हरे शैवाल होते हैं उनमें प्राय एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जिसकी भीतरी सतह सेलुलोज की तथा बाहरी सतह पैक्टोस की बनी हुई होती है। नेक्स्ट बताया गया है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। आगे बताया गया है कि कायिक जनन प्राय तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु स्पोर के बनने से होता है। अलैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जूस्पोर से होता है। जूस्पोरेंजिया यानी कि चल बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं। और लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने से बहुत विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। ये समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ऊगैमस टाइप के ये हो सकते हैं। और कुछ कॉमनली जो सामान्य सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, न्यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारम, जिनकी की 3.1 के अंदर डायग्राम दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में फियोफाइसी। The member of Phaeophyce or brown algae are found in primarily in marine habitat. Phaeophyce अथवा भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में ही पाए जाते हैं। They show great variation in size and forms. इनकी माप में और आकार में विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। ये they range from simple branch filamentous forms to profusely branched forms as represented by clips and which may reach a height of 100 meters. They possess chlorophyll A, C, carotenoids and
Xanthophylls, they vary in color from olive green to various shades of brown depending upon the amount of the xanthophyll pigment or fucoxanthin present in them. Food is stored as complex carbohydrate which may be in the forms of laminarin or mannitol. The vegetative cells have a cellulosic wall, usually covered on the outside by a xanthous coating of algin. The protoplast contain, in addition of plastids, a certainly located vacuoles and nucleus. The plant body is usually attached to the substratum by a holdfast and has a stalk, the stip and leaf-like photosynthetic organ. The front vegetative reproduction take place by fragmentation. Asexual reproduction is most brown algae is by biflagellated zoospores that are pear-shaped and have two unequal laterally attached flagella. फ्यूफाइजी जो भूरे रंग की शैवाल है उसके बारे में बताया गया है कि ये सघन शाखित कैल्प तरह के होते हैं। कैल्प की ऊंचाई तकरीबन 100 मीटर तक की हो सकती है। इसमें क्लोरोफिल ए, सी और कैटिनाइट तथा जैंथोफिल पाया जाता है। इनका रंग जैतूनी हरे रंग से लेकर भूरे के विभिन्न शेड का हो सकता है। ये शेड जैंथोफिल वर्णक फ्यूकोजैंथिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इनमें जो भोजन का संचयन होता है वो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होता है और यह भोजन ये जो फूड है वो लैमिनिन अथवा मैनिटोल के रूप में हो सकता है। कायिक कोशिका यानी कि वेजिटेटिव सेल जो होती है उसमें सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है जिसके बाहर की ओर एल्जिन अथवा जिलेटिन का स्तर पाया जाता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में राजधानी तथा केंद्रक पाए जाते हैं और पौधा प्राय संलग्न द्वारा अधस्तर यानी कि सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। इसमें एक वृंत तथा पत्ती की तरह के प्रकाश संश्लेषी अंग पाए जाते हैं। इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बायफ्लैजिलेटेड। आगे बताया गया है कि अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार के 2 फ्लैजिला युक्त जूस्पोर के द्वारा होता है और कायिक जनन विखंडन के द्वारा होता है। इसके फ्लैजिला असमान होते हैं तथा पार्श्वीय रूप से जुड़े रहते हैं। अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला, ठीक है, पार्श्वीय रूप से ये जुड़े रहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस union of gametes may take place in water and within the oogonium, and the gametes are pyriform यानी pear shaped and bear 2 lateral attached flagella. The common forms are ectocarpus and the dactyla and lamirina, sargassum and the fucus. इसमें लैंगिक जनन समयुग्मकी, असंयुग्मकी और विषम युग्मकी प्रकार का होता है। युग्मकों का संगम जल में अथवा अंडधानी यानी विषम युग्मकी स्पीशीज में हो सकता है। युग्मक पायरीफॉर्म यानी नाशपाती के आकार के होते हैं। इसके पार्श्व में 2 फ्लैजिला होते हैं। इनके सामान्य सदस्य हैं एक्टोकार्पस, डिक्योटा एंड लैमिरेनिया, सार्गसम एंड फ्यूकस। लास्ट है इसका रोडोफाइसी, और रोडोफाइसी बताया गया है द मेंबर ऑफ द रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड द रेड एल्गी। जो रोडोफाइसी है इसको लाल रंग की शैवाल के नाम से जाना जाता है। इनका बिकॉज ऑफ द pyromagnesians of the red pigment and are phycoerythrum in their body। इनमें इन्हें लाल शैवाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें लाल रंग का जो वर्णक है आर फाइकोएरिथिन के कारण होता है। और अधिकांश ये जो शैवाल होती हैं ये समुद्र के अंदर पाई जाती हैं और इनमें बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है, यानी कि जो गर्म क्षेत्र जो होता है वहाँ पर ये पाई जाती हैं समुद्र में। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ पर ही पाई जाती हैं और गहराई के अंदर जहाँ पर कम प्रकाश होता है वहाँ पर ही पाई जाती हैं। द रेड टेल
द रेड थैले ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। लाल शैवाल का जो लाल थैलस होता है वो बहुकोशिकीय होता है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कुछ की संरचना जो होती है वो बहुत जटिल टाइप की होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। आगे बताया गया है कि सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल द फूड इज स्टोर एज अ फ्लोरिडीन स्टार्च विच इज़ वेरी सिंपलर इन एमाइलोपैक्टिन एंड द ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। आगे बताया गया है कि इनमें जो भोजन का संचयन जो होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है और इस स्टार्च की रचना एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती हैं। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय अ फ्रेगमेंटेशन। ये जो एल्गी होते हैं इनमें काई जनन विखंडन के द्वारा होता है। द रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड द सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। इनमें जो काई जनन है वो विखंडन, अलैंगिक जनन व अचल स्पोर्स, लैंगिक जनन अचल युग्मकों के द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषम युग्म प्रकार का होता है इनमें। और इसके बाद में बताया गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड द accumulate by complex post fertilization developments. The common members are Polysiphonia and the Porphyra, Gracilaria and the Gelidium. आगे बताया गया है कि इनके जो मेंबर हैं उन मेंबर के बारे में बताया गया है कि लैंगिक जनन विषमयुग्मी प्रकार का होता है और इसके पश्चात इसमें निषेचनोत्तर विकास होता है, यानी निषेचन के बाद में ही विकास होता है। इनमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स पाया जाता है। तो आपको यहाँ पर ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि रोडोफाइसी के जो मेंबर होते हैं उनके अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट पाया जाता है। इसके जो मेंबर हैं वो मेंबर कौन कौन से हैं इसके? पॉलीसाइफोनिया, ग्रासिलेरिया एंड पोरफायरा और जिलेडियम। ओके, इसके बाद में आपके पास में यहाँ पर ये टेबल दिया गया है और इस टेबल के अंदर क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं उसके बारे में बताया गया है कि इसका कॉमन नेम क्या है, मेजर पिगमेंट इनमें कौन सा पाया जाता है और इसमें जो फूड जो स्टोर है वो किस रूप में होता है, इनकी सेल वॉल कैसी होती है, फ्लैजरल नंबर कितने होते हैं इनमें और इनका हैबिटेट कैसा होता है। तो ये वाला जो 3.1 की टेबल है वो आप अच्छे तरीके से कर लें, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइटा, जो कि ब्रायोफाइट्स जो हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर के 3rd पार्ट के अंदर। आई होप कि आज का जो ये पार्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच बेटे।